This time before annual day we have something more. What is it? 10th year's anniversary. 10th year of annual day. So we will start in few minutes. We request everyone to please fill in this forum. Everyone please come and be seated. I see most of the ladies, most of the girls, they have come and sat here with the discipline. So let's give a big round of applause to all these ladies and girls. Very good. Can we have gentlemen? Can you all make some noise? I will say some quotes. The best school in Tumkur is, the best students are at. हमारे इदारे के बानी और जनरल सेक्रेटरी हाजी मिर्ज़ा असलम पाशा सर, उनको स्टेज पे वेलकम सर to the stage. Let's give a big round of applause to our president sir. Sayyidina Anas bin Malik Madrasa, Mufti Tawheedur Rahman Qasmi Saab. Please come on the stage sir. Master and coordinator Nisar Ahmad sir on the stage. Our Tumkur Municipality Corporator and Councillor Nayaz Saab, he is also the President of Health and Wellness Committee of Tumkur Municipality. Let's give a big round of applause to welcome Nayaz Ahmad Saab to the annual day function of Ali Public School. I also invite our headmistress Aisha Alam ma'am to the stage. I also invite our campus director Dr. Ayub sir onto the stage. I request all the dignitaries to occupy the stage so that we can start the program now. Anwar Saab, the principal of Ali PU College, and also Zamrud sir, the CEO of Ali PU College. Please come on the stage. Let's give a big round of applause to invite all our dignitaries. Dr. Ayub sir, Zamrud sir, Anwar Saab, please come on the stage. Our coordinator Nisar sir, HM Aisha Allah ma'am, Admin Shaista ma'am. So this is a formal program, formal inauguration program of 10th years of annual day of Ali Public School. Let's give a big round of applause to appreciate and welcome everyone. With that note, let's get started with the Qiraat. Quran is a blessing of all our programs, of all our majlis and our institution, rather our campus. It is running through the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala for the respect and the practice what we have of Quran in this campus. Let me invite Sayyid Saqlain Ahmad to recite the Quran and to start this program. Let's give a big round of applause to Sayyid Saqlain Ahmad, son of Taibul Huda Baji and Riyaz Saab. Over to Sayyid Saqlain. أعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. MashaAllah, Hafiz Quran soon, inshallah. And the next in the list, let me invite Muhammad Asim from Super 40 Hifz team for a melodious naat. Son of Nasreen ma'am. Let's give a big round of applause to Muhammad Yasir for a naat on stage. मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन सी अपनी जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन सी अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया जो पूछा नबी ने कि कुछ घर बिछोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत की क्या है ज़रूरत जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है
सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा आता के पुर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो क़ैमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो क़ैमे में रो कर के बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है, नजर में बसाने को दिल चाहता है। सलाम। MashaAllah, let's give a big round of applause to Muhammad Yasir for that melodious naat. Next, before I invite the leader for the welcome speech, let me introduce him to you. Alhamdulillah, Ali Public School, managed by Jamia Sayyidina Anas ibn Malik. It was established in 2014. So we have completed 10 great years, or it is a decade. So we are celebrating this decennial celebration. So it is the ikhlas and the dua of our management and all their hard work. We have been continuously getting the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and one such blessing is our campus director, Dr. Ayub sir. So he is basically from Ramnagar, but for 3 decades, for 30 long years, he has served in the Holy Land of Saudi Arabia, especially in the Haramain Sharif. So he worked in Makkah and Medina for 3 decades in different Islamic schools, and it is absolutely our blessings. We are glad to have him here onboarded as a campus director, as an in charge of this campus, who has been guiding us. So in this auspicious occasion, it's my honor and privilege to welcome him to deliver the welcome speech for this program. So with a big round of applause, let me invite Dr. Ayub sir on stage. الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. It's with great pleasure I'm here standing on behalf of the management of Anas bin Malik Educational and Charitable Trust, under whom
we have got different educational institutions in our campus, like Madrasa Anas bin Malik with Hufaz and Tahfiz under the ihtimam of Mufti Tawheedur Rahman Qasmi. And we have got Ali Public School under Mr. Nisar Ahmad sir, and Ali PU College under Mr. Zamrud Khan sir, and we have got Badri Foundation and Super 40 batch. This is with to mark the historical event of celebrating 10 years of our performance. So it's a historical event where we have assembled here for tonight. So in the continuation of the events, I have been given the honor of welcoming the dignitaries here on the dais. So let me welcome our founder and general secretary, Mirza Muhammad Aslam Sahab, the founder and general secretary. He will not be seen on the dais. You can see him standing there welcoming the guests. He is the only concerned person here to welcome the guests. We all are here on the dais. So on behalf of you and all, I welcome Mirza Aslam Pasha Sahab, our honorable secretary and founder of this trust. Give a bigger hand for him. And hand in hand, shoulder to shoulder with Haji Mirza Aslam Pasha Sahab, we have got our president, Al-Haj Abdur Rahman Sahab. In all his activities, they have been together from the beginning and until now. Because of their efforts, we can see this campus. We have got so many structures here, a masjid, a madrasa, a PU college and a high school. So with sincere of a heart, on behalf of you and all, I welcome Haji Abdur Rahman Sahab also on the dais. Yes, you can see the handing over of the bouquets to Haji Abdur Rahman Sahab. And we will hand over Haji Aslam Pasha's bouquet to Mufti Tawheedur Rahman Sahab. We have to do it formally because Haji Sahab is out receiving the guests. On behalf of Haji Sahab, Mufti Tawheedur Rahman Sahab is receiving the bouquet. So then I'll proceed welcoming Sayyid Niyaz Sahab, who is a corporator in the corporation of Tumkur and a big businessman. He's been a well-wisher, donor and everything for the upliftment and progress of our institution. Then I will open heart and sincerely welcome Mr. Anwar Saab, MD of Ali PU College, and he's been working as a principal of Shaheen College also before. Please give a hand for him also. Welcome, sir. And then we have got our principal, Mr. Zamrud Khan Saab, who is running his academy also, training, giving tuitions, and we welcome him also on the dais. And now I humbly welcome Mufti Tawheedur Rahman Qasmi, Muhtamim of Madrasa Anas bin Malik, under whose guidance we have been carrying a lot of activities in the campus. Please welcome, sir. And I welcome Mr. Zaul Haq Sahab also on the dais. Please welcome, sir. So now I hand over this continuation to Mr. Muhammad Haris, our General Manager for the campus.
Thanks a lot for giving me the opportunity to welcoming all the dignitaries, and I welcome our teaching faculty from both PU College and in Madrasa. I mostly heartily welcome them. I welcome my students and teaching faculty and our Bajis and all the parents who are here to witness today's function. I openly, sincerely, heartily welcome you, all of you together. Thank you very much. Jazakallahu khairan. Let's give a big round of applause to welcome our campus director, Dr. Ayub sir, and I also welcome all our management leaders, including our coordinator and headmaster Nisar Ahmad sir, and our headmistress Aisha Alam ma'am, and our admin Shaista ma'am, and all the teaching and non-teaching staff, and all the Hazrats, especially our Mufti Razaul Haq Sahab, who is also present on the stage. I would like to welcome everyone again, and before we move forward for the speech of Mufti Sahab, I would like to invite Muhammad Asim, the student of Super 40 HIFZ program. So it's our honor to have another Naat from him. Let's give a big round of applause to invite Muhammad Asim on stage. पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, 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 कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने। हर्षे पे लिखा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, 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 देगा सहारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं। उनसे है सीखा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। And next, as I said, it has been a decade. It has been 10 great years. So someone who has been here from the beginning, it is not just for one decade, even more than that. I mean, when our trust was established in the year 2002, so from last 22 years, someone who has been here, first who joined as the student of our madrasa, the first batch student, later he became the Hafiz from our madrasa, later he became Alim and then Mufti. Now, then he joined as a teacher in our madrasa. Currently he is a Muhtamim and the principal of our madrasa, Mufti Tawheedur Rahman Qasmi Saab. Let's give a big round of applause to welcome Mufti Saab, and I request him to share his experience, what was there way back in 2002 and way back in 2014 when we started the school, and how now it has been. So over to Mufti Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم, मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, अज़ीज़ पेरेंट्स,
आज हमारे अली पब्लिक स्कूल का एनुअल डे है। बच्चे सालाना तालीम की खुशी मनाते हैं, अपना मुजाहरा करते हैं और इस्लामिक कल्चर को अपने सामने पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को कबूल फरमाए, हमारे इन मासूम बच्चों की मेहनतों को कबूल फरमाए और इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से मालामाल फरमाए और हमारी अली पब्लिक स्कूल को खूब तरक्यात से मालामाल फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने क़द जाअतकुम मौइज़ा, तुम्हारे पास ये किताब के ज़रिए से नसीहत को भेजा है। कुरान मजीद हमारे लिए एक नसीहत है। कुरान मजीद हमारी कामयाबी के लिए और हमारी फलाह व बहबूदी के लिए अल्लाह ने उतारा है। मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और दिलों की शिफा के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद को उतारा है। व हुदन व रहमतन लिल मुत्तकीन व हुदन व रहमतन लिल मुमिनीन, और कुरान मजीद को अल्लाह ने हिदायत बनाकर रहमत बनाकर नाजिल फरमाया है। और एक आयत में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान मजीद को याद करने वालों के लिए आसान फरमाया है। कुरान मजीद को समझने वालों के लिए अल्लाह ने आसान फरमाया है, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब बंदा कुरान मजीद को समझने की कोशिश करता है और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को समझने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को बुलंदियों तक पहुँचाया। जिसकी ज़िंदगी में कुरान मजीद है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाते हैं। और कुरान मजीद को छोड़ने पर अल्लाह ताला उस आदमी की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। यही हदीस में आता है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को थामने से, कुरान मजीद को पढ़ने से, कुरान मजीद पर अमल करने से अल्लाह ने उस कौम को दुनिया और आखिरत की कामयाबी से सरफराज फरमाया। वयज़अु बिही आखरीन, और कुरान मजीद को छोड़ने पर अल्लाह ने बहुत सारे कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया। दुनिया में भी खसारे में रहे और आखिरत में भी खसारे में रहे। हदीस में आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन आदमी वो हैं जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं और सिखाते हैं और सीखते हैं। यही मकसद को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान मजीद की आयतें, ये अहादीस, ये आप हजरात के सामने पेश करने का मकसद ये है कि अली पब्लिक स्कूल का मकसद भी यही है कि यहाँ पर हमारे बच्चों के ईमान और हिफाजत की सलामती हो, उनके अकायद की सलामती हो और उनकी ज़िंदगियों में कुरान मजीद उतारा जाए, उनकी ज़िंदगियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत उतारी जाए। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, पूरे हजरात इस बात से वाकिफ़ हैं, तालीम तो हमारा बहाना है, ईमान हमारा निशाना है। कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो यहूदियों के हैं, ईसाइयों के हैं, क्रिश्चियनों के हैं। आज हमारे मुसलमान फ़ख्र के साथ, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पर ईमान कमज़ोर होने की वजह से, हमारे अकायद कमज़ोर होने की वजह से आज हमारे बच्चियों को स्कर्ट्स पहनाकर भेजा जा रहा है, हमारे बच्चियों के सरों से दुपट्टा निकाल कर भेजा जा रहा है और मोटी मोटी फीस बनकर अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारी बच्ची कामयाब हो गई। हालांकि यह कामयाबी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, यही ऐसा दौर रहेगा तो हमारी बच्ची मुर्तद होने में कोई देर नहीं लगेगी,
हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने में कोई देर नहीं लगेगी। यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की होगी, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमायदीन शहर की होगी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिन लोगों को अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है। अगर इस्लामिक स्कूल को क़ियाम नहीं किया जाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे गिरेबान को पकड़ेंगे। मैंने तुम्हें ओहदों से नवाजा था, मैंने तुम्हें माल से नवाजा था, मैंने तुम्हें शोहरतों से नवाजा था, मैंने तुम्हें दुनिया के असबाब अता फरमाए थे, लेकिन तुम लोगों ने दुनिया में क्या किया। अल्लाह ताला हमारे ऐसे इदारों को खूब तरक्कियात से माला माल फरमाए। यही मकसद को लेकर अली पब्लिक स्कूल 2014 में शुरू किया गया। इसका मकसद ही यही था कि हमारे शहर टुमकुर में तकरीबन एक ज़माना ऐसा था, हमारा बचपने में तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज नहीं मिलते थे, तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज नहीं मिलते थे। बिहार से, यूपी से, बाहर से बुलाया जाता था। अल्लाह हमारे इन जिम्मेदारों को, इन बानीन को जज़ा खैर अता फरमाए। उन्होंने उस वक्त फिक्र की, 2002 के अंदर फिक्र की कि हमारे बच्चे, हमारे जिम्मेदारों के बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। एक एक जिम्मेदार अगर चाहे तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। उसमें से हमारे भी वालिद मोहतरम हैं, मैं भी स्कूल पढ़ रहा था। हमारे जिम्मेदार जैसा कि आसिफ भाई हैं, और इसी तरीके से हमारे जियाउल्लाह भाई हैं, और इसी तरह बहुत सारे जिम्मेदारों ने अपने बच्चों को अल्लाह के दीन पर लगाया। जैसा कि हमारे सामने मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, ये भी यहीं के एक तालिब इल्म थे। अल्लाह ने इस इदारे को सरसब्ज व शादाब फरमाया और ऐसे हुफ़ाज को पैदा फरमाया और ऐसे आलिम दीन को पैदा फरमाया, आलिम रब्बानीन को पैदा फरमाया, मुफ्तियों को पैदा फरमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर टुमकुर ही में नहीं बल्कि सूबे में हमारे अनस इब्न मालिक के तलबा काम कर रहे हैं। अली पब्लिक स्कूल हमारे अनस इब्न मालिक के उलमा पूरे सूबे में फैले हुए हैं, और हमारे सामने तकाज़े आते हैं कि हमें अली जामिया सैयदना अनस इब्न मालिक का तालिब इल्म चाहिए, हमें कुरान सुनाने के लिए हमें तालिब इल्म चाहिए। ये एक ज़माना था, आज मस्जिदें कम हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज ज़्यादा हो गए हैं। आज मस्जिदें कम पड़ गई हैं। अगर एक मस्जिद में भी 2 हाफिज कुरान सुनाएंगे तो मस्जिदें कम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान ज़्यादा हैं। ये हमारे लिए शहर टुमकुर के लिए फ़ख्र की बात है। ये एक ज़माना था कि दिल्ली से, बिहार से, यूपी से उलमा को बुलाया जाता था, लेकिन आज वो दौर है। आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं, हर हाफिज कुरान जाकर तकाज़ा पेश करने पर मजबूर है कि मैं कुरान सुनाऊंगा। ये कहाँ से हुआ? ये फ़िक्रों की बुनियाद पर अल्लाह काम लेते हैं। जैसी फ़िक्र होगी अल्लाह वैसा काम लेते हैं। अल्लाह हमारे इन जिम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने फ़िक्र की। 2002 में अनस इब्न मालिक का क़ियाम अमल में आया। आज तकरीबन 24 साल का अरसा गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सैयदना अनस इब्न मालिक की जो कुर्बानियाँ हैं, जो मुसलसल जद्दोजहद में लगा हुआ है, मुसलसल हुफ़ाज़ की कितार बढ़ रही है और उलमा बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 से ज़्यादा यहाँ पर हाफिज़ कुरान बनकर निकल गए, 250 से ज़्यादा। फिर हमारे इन जिम्मेदारों को अल्लाह जज़ा खैर दे, हमारे इन बानीन को जज़ा खैर दे, हाजी साहब को अल्लाह जज़ा खैर दे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हाजी अब्दुल रहमान साहब को अल्लाह जज़ा खैर दे। इन्होंने ये बात ठान ली कि मदरसे में आने वाले बच्चों की तादाद सिर्फ 1% है। बच्चों की आने की तादाद सिर्फ 1% है। 99%, 99% जो बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं, हमारे दीन से निकल रहे हैं, हमारी शरीयत से निकल रहे हैं, उनकी फिक्र कौन करेगा? अल्लाह ने इनके जहनों में बात डाली। बड़े अकाबिरीन से मशवरा किया, जिम्मेदारों से मशवरा किया, उलमा से मशवरा किया। पूरे जिम्मेदारों ने उस वक्त कहा, बहुत सारे लोगों ने, स्कूल खोलकर तुम क्या करोगे? स्कूल खोलकर क्या करोगे? अब पता चल रहा है स्कूल की कदर कितनी है।
जितना मस्जिद का होना हर मोहल्ले में जरूरी है, याद रखो मेरी बात को, कान खोल कर सुन लो, जितना हर मोहल्ले में एक मस्जिद का होना जरूरी है, इतना ही जरूरी हमारे हर मोहल्ले में एक इस्लामिक स्कूल का होना जरूरी है। वरना आने वाले वक्त में हमारे बच्चे हमारी जनाजे की नमाज के लिए तैयार नहीं होंगे, जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी, ऐसे ही तदफीन कर दिया जाएगा। ऐसा दौर आने वाला है, ऐसे दौर से आने से पहले पहले हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तैयारी करें, उनकी फिक्र करें, उनकी तालीम की फिक्र करें, उनकी तरबियत की फिक्र करें। अगर मैं आप हजरात के सामने कहता चलूं तो एनुअल डे नहीं होगा, बल्कि मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। इतनी लंबी कुर्बानियां हैं, इतनी लंबी बात है, मुझे मुख्तसर सा वक्त दिया गया, लेकिन मैं कहने पर मजबूर हूं। मैं दुआ गो हूं, दिल की गहराइयों से दुआ गो हूं। अल्लाह ताला यहाँ के असातिज़ा को जज़ा खैर अता फरमाए, हमारे जिम्मेदारों को जज़ा खैर अता फरमाए, हमारे इन पेरेंट्स को जज़ा खैर अता फरमाए। इन्होंने सब मिलकर एक ऐसी स्कूल को मजबूत कर रहे हैं जो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी, आने वाली नस्लें याद रखेंगी। हाँ, ये एक वक्त था, एक दौर था कि हम यहूदियों और क्रिश्चियनों और ईसाइयों के हवाले हो रहे थे। हमारे जिम्मेदारों ने एक स्कूल कायम किया, हमारे जिम्मेदारों ने एक मदरसा कायम किया था, जिसकी वजह से आज हमारा ईमान महफूज है, जिसके ज़रिए से आज हमारे अकायद महफूज हैं, जिसके ज़रिए से हम नमाज पढ़ने वाले हैं, तजवीद और तरतील के साथ कुरान पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में ये अली पब्लिक स्कूल का क़ियाम अमल में आया। वजह यह है कि 90% बच्चे हमारे जा रहे थे। फिर फिक्रें हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का कलील अरसा गुजरा है, छोटा सा अरसा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे तकरीबन 750-800 बच्चे यहाँ पर ईमान की सलामती के साथ, पर्दे के साथ और कुरान की तिलावत के साथ, अकायद के साथ, तालीम तो भाड़ में जाए वो अलग बात है, खबर में उसका सवाल नहीं होगा, खबर में उसका सवाल नहीं होगा। कम अज कम हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे अगर ऐसी स्कूल में पढ़ेंगे तो 3 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़कर हमारे लिए बख्श देंगे तो हमारी नजात के लिए काफी हो जाएगा। यह जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों, हमारे बच्चों की आखिरत की फिक्र की जाए। हम ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। मौलाना अकबर शरीफ साहब दामत बरकातुहुम फरमाया, कुछ दिन पहले शहर टुमकुर में तशरीफ लाए थे। हर पेरेंट्स ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि मेरे बच्चे की 25 साल की उम्र गुजर गई, अब आने वाली 40-50 साल है, वो अच्छी कंपनी में काम करे, अच्छे डॉक्टर बने, हाँ वो बने, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें। हमारा मुस्तकबिल तो मरने के बाद शुरू होता है, हमारा मुस्तकबिल दुनिया का नहीं है, हमारा मुस्तकबिल तो मरने के बाद शुरू होता है। अगर ये ईमान हमारा नहीं है, हम दुनिया में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, ऐ मेरे बंदों तो क्या तुम गुमान कर बैठे हो कि तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। अलम यकु नुतफतम मिन मनी युमना, जब तुम ये नापाक खतरे थे, उस नापाक खतरे से मैंने तुम्हारे जिस्म को बनाया, मैंने तुम्हारे जिस्म को संवारा, तुम्हारी आंख को बनाया, तुम्हारे कान को बनाया, तुम्हारे नाक को बनाया। जब मैं इतनी कुदरत रख सकता हूं, क्या तुम दोबारा मरने के बाद जिंदा नहीं हो सकोगे? क्या मेरे अंदर वो ताकत नहीं है? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, अल्लाह यह सवाल कर रहा है कि तुम दोबारा जिंदा होगे, वहां से तुम्हारा मुस्तकबिल शुरू होगा। अजान हो रही है। यहाँ पर सांप बिच्छू फिरते थे, हमने अपने आंखों से देखा है 2002 में। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर कई हुफ़ाज़ पल रहे हैं, कई जो है दीन के सिपह सालार पल रहे हैं और दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। यह सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे के फाउंडर हाजी असलम साहब की कुर्बानियों का नतीजा है और इसी तरीके से हमारे अब्दुर्रहमान साहब की कुर्बानियों का नतीजा है। इन दोनों ने मिलकर एक नीयत की, एक इरादा किया, एक कोशिश की कि इदारे को एक आगे तक ले जाएं। ये वक्त जो है हमारे सामने नज़र आ रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, यही फ़िक्र स्कूल को
खड़ा की है। तकरीबन 2014 में जब इदारा शुरू किया गया उस वक्त LKG से UKG से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ऐसा शुरू होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सेकेंड PUC की तक तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका मकसद स्कूल का क़ियाम अमल में आया, अल्लाह ताला ने पूरा फरमाया। तकरीबन इस इदारे में जो स्कूल में जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं 400 से 450 बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों में कुरान ले लिए हैं। ये कितनी बड़ी बात है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये कोई मामूली बात नहीं है। 400 450 बच्चे और बच्चियां कुरान ले लेना। मैं हमेशा कई मरतबा जलसा होता है उसमें यह कहता हूं कि 400 450 बच्चे और बच्चियां नहीं हैं, बल्कि 450 नस्लें बन गई हैं। ये कि एक बच्ची भी ये कि एक मदरसा कायम कर सकती है, ये कि एक बच्ची भी एक इदारा चला सकती है। जैसा कि हमारे इदारे में अली पब्लिक स्कूल में जिस मकसद से शुरू किया गया था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। स्कूल की तालीम हासिल करने के साथ साथ हमारे ये बच्चियां 2 लड़कियां और 2 लड़के कामिल हाफिज कुरान बन गए हैं। 2 लड़के और 2 लड़कियां, एक लड़का कॉलेज का लड़का कॉलेज में पढ़ते हुए हाफिज कुरान बना है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं हजरत मौलाना यासीन साहब दामद बरकातहुम का फर्जंद भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाए हैं। और इसी तरीके से मधुगिरी में रहने वाले मौलाना उनके फर्जंद हाफिज अफ़ान अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज पढ़ते हुए स्कूल पढ़ते हुए हाफिज कुरान बने अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से पिछले साल हमारी ही बहन जो लुलुल हुदा जो आज यहाँ पर मुदर्रिसा है और बच्चों को पढ़ाती हैं, वो भी स्कूल पढ़ते पढ़ते हाफिज कुरान बनी और अल्हम्दुलिल्लाह दरस व तदरीस का काम दे रही है। और अपने महल्ले में जामियतुल खुर्शीदुल हुदा लिल बनात के नाम से एक मदरसा शुरू की हैं। यहाँ सुबह से 9:45 से लेकर 4:30 तक पढ़ाती हैं और फजर के बाद वहाँ के महल्ले के बच्चों को घर घर जाकर वहाँ इत्तला देकर ये कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ आएँ, हम तजवीद और तरतील के साथ तुम्हें कुरान पढ़ाएंगे, उनके अकायद को महफूज करेंगे। ये सब जो है फ़िक्रों पर होता है। अगर फ़िक्रें होंगी अल्लाह काम लेगा, अगर फ़िक्रें नहीं होंगी तो अल्लाह काम नहीं लेता। और इसके बाद में जब ये बच्चे जो हमारे स्कूल के बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे सामने मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह खानी के मौके पर बहुत सारे पेरेंट्सों ने मिठाई तकसीम की और उनके आंखों में आंसू थे। हज़रत हमारे बच्चे को अलिफ बा तक नहीं आता था, आज हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बन गए, कुरान को तजवीद और तरतील से पढ़ने वाले बन गए, हमारे पास आकर मिठाई को तकसीम करते हैं। जब हमारे जिम्मेदारान वहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो ये कहते हैं आज हमारी कमाई का दिन है, आज हमारी कमाई का दिन है। तकरीबन 24 साल से इदारा चल रहा है। ये मुखलिसीन की जमात ऐसी है, आज तक इस इदारे से पानी तो पीने की तो दूर की बात है, बल्कि अपना पूरा सरमाया, अपनी जान माल सलाहियतों को लगाकर इस इदारे को बनाया गया है। जब ये बच्चे पढ़कर फारिग होते हैं, अपने हाथों में कुरान लेते हैं, तो हाजी साहब बारहा ये कहते हैं, हाजी अब्दुल रहमान साहब बारहा ये कहते हैं, आज ये जो है हमारी मजदूरी का दिन है। जब बच्चे कुरान लेते हैं हाथ में तो ये अहबाब कहते हैं कि अल्लाह ने हमें अपनी मजदूरी अपने हाथों में दे दी। ये है इखलास की बरकत, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता हो रहे हैं और तरक्की पर गामजा हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इतना बड़ा निज़ाम चलाने के लिए एक दूसरे का ताउन ज़रूरी है। जो इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है, इधर मदरसा चल रहा है, इधर स्कूल चल रही है, मदरसे में स्कूल की तालीम हो रही है, स्कूल में मदरसे की तालीम हो रही है, इधर सुपर 40 की क्लास चल रही है, इधर बदरी की क्लास चल रही है, इधर रेसिडेंशियल की क्लास चल रही है, इधर कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, यहाँ पर क्रैश कोर्स चल रहा है और फ्री आमद और रफ का निज़ाम किया जा रहा है। क्यों बताइए, क्यों इतना सब कुछ निज़ाम? क्या पैसे कमाने के लिए बनाया जा रहा है? हरगिज नहीं, बल्कि इतना बड़ा निज़ाम इसलिए चलाया जा रहा है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। हमने सोचा कि कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए सुपर 40 बनाई गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिन पहले हमारे हाफिज याकूब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मौली रियाज साहब मौजूद हैं, 40 बच्चों ने अपने हाथों में कुरान लिया है।
40 बच्चों ने अपने हाथों में कुरान लिया, क्या मामूली बात है? हमारी जिंदगियां बन गई, हमारी नस्लें बन गई। ये 40 तलबा नहीं है, ये बल्कि 4 लाख तलबा के बराबर है। एक एक बच्चा एक मदरसा कायम कर सकता है, एक एक बच्चा एक स्कूल कायम कर सकता है। जब तक कान खोल कर सुन लें मुअज़्ज़ज़ सामाईन, कि जब तक इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह चला रहे हैं, ये इखलास ही की बरकत है, इन जिम्मेदारों की इखलास की बरकत है। अगर आप हजरात का ताउन नहीं होगा, याद रख लो इदारा तरक्की नहीं होगा, इदारा तरक्की नहीं होगा। ये एक दूसरे के ताउन से इदारा चलता है। बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती, स्कूल के कवानीन पर अमल करना हमारे ऊपर फर्ज है। अगर उस स्कूल के कवानीन पर हम अमल नहीं करेंगे, मनमानी करेंगे, अपने एतबार से स्कूल चलाने की कोशिश करेंगे, तो हरगिज ये घर अपने 10 लोगों की राय से नहीं चल सकता। तो क्या स्कूल जो है 800 लोगों की पेरेंट्स की राय से चलेगी? जो इदारा बनाया जाता है, उसूलों पर बनाया जाता है, कवानीन पर बनाया जाता है, अगर पेरेंट्स, वालिदैन अगर मैनेजमेंट का साथ देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, वक्त पर अपनी फीस अदा करेंगे, वक्त पर पेरेंट्स अपना ताउन लेकर आएंगे, तो इदारा आज जो तरक्की में है उससे भी ज़्यादा तरक्की हो सकता है। हमारे काउंसलर जनाब नयाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इदारे की पूरी हकीकत को जानते हैं, इदारे की पूरी नौइयत को जानते हैं, और यहाँ पर जो हालात आते हैं वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ रखते हैं। कई मरतबा अल्लाह हज़रत को जज़ा खैर दे, इदारे के एतबार से बहुत सारे कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला इनके जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में खूब बरकतें अता फरमाए। और इसके बाद में अपनी मुख्तसर सी बात को निमटाते हुए आज उम्मत के मालदारों को यह पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह अपने माल को सही जगह लगाएं, इस्लामिक स्कूल को कायम करें। वक्त का तकाजा है, यही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। वरना हमारे बच्चों के ईमान को ख़त्म करने के लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं, हम थोड़े बराबर भी इस पर सोच नहीं रहे हैं। ये एक बच्चे को कहा जाता है कि उसके अकीदे को ख़राब करने के लिए यहूदियों की स्कूल में, क्रिश्चियनों की स्कूल में, मेरी बात गौर से सुने, क्रिश्चियनों और यहूदियों की स्कूल में अपने मुसलमान बच्चे के अकीदे को ख़राब करने के लिए खुसूसन नाटक किया जाता है, और ये कहा जाता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर तू ईमान वाला है, अल्लाह पर ईमान रखता है, कुरान पर ईमान रखता है, तो इस गाड़ी को स्टार्ट कर कर दिखा। जबकि वो गाड़ी सही सालिम है, अच्छी है, लेकिन बच्चे के ईमान को ख़राब करने के लिए उसकी जहन में ये बात डाला जाता है कि अल्लाह से नहीं होता, हमारे कहने पर होता है, हमारी ताकत से होता है। ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। खिंजीर का गोश्त जबकि हराम है, वलहमल खिंजीर का गोश्त अल्लाह ने हराम फरमाया है। ऐसे हराम गोश्त को भी हमारे बच्चों के अकायद को ऐसा बनाया जाता है कि ये खिंजीर जो है घर का पाला हुआ खिंजीर है, वो गंदगी खाने वाला खिंजीर हराम है, घर में पाला हुआ खिंजीर हलाल है, इसे खाया जा सकता है। जबकि अल्लाह ने उसे हराम कर कर बतला दिया। कुरान मजीद में उसका साफ इरशाद फरमाया, शराब को मैंने हराम कर दिया, खिंजीर को मैंने हराम कर दिया। लेकिन यहूदियों की, क्रिश्चियनों की, ईसाइयों की स्कूल में हमारे बच्चों के ईमान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और यह कहा जाता है खिंजीर हराम नहीं है बल्कि हलाल है। ऐसी मेहनतें हो रही हैं, हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, हमारे दरमियान में ऐसे फितने उजागर हो रहे हैं कि गोहर शाही, अना खातमुन नबीयीन अला नबी अबादी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन इस उम्मत में ऐसे भी फितने उजागर हो रहे हैं जहां पर नबी का दावा कर रहे हैं, नबी का दावा कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चों को सही इस्लामिक माहौल में नहीं लेकर जाएंगे तो हमारे ही बच्चों में नौज बिल्ला, हमारे टुमकुर में अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा शुरू हुआ है ख़त्म नबूवत के नाम से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक काम परसों ही जो है हज़रत मौलाना अरशद अली साहब जो हैदराबाद के, मेरा ये शेर मंसूब करता हूँ, मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और आगे हमारे अली पब्लिक स्कूल और अनस इब्न मालिक के जानिसारों के लिए एक शेर कहता हूँ,
जहालत को जहां से मिटाकर रहेंगे। हमारी अली पब्लिक स्कूल और अनस इब्न मालिक का यही मकसद है, जहालत को जहां से मिटाकर रहेंगे, हिदायत की शमा जलाकर रहेंगे। तासुब की तारीकियां छा रही हैं, अब हम मोहब्बत की शमा जलाकर रहेंगे। बिफजले खुदा इल्म दीन का मरकज अब हम टुमकुर को बनाकर रहेंगे। आओ चले आओ, जामिया सैयदीना अनस इब्न मालिक और अली पब्लिक स्कूल के जानिसारों, अब हम सदाकत का कलिमा पढ़ा कर रहेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Our student anchors, Mufliha Konain on stage. So Ali Public School, it is not just about teaching the textbook. We create the future leaders. We give them all the training and capabilities to be the leader. Over to Mufliha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Mufliha Konain of 8th A. Today I am going to host the program. I would like to call Safwan Khan to recite Tahrir. करीब फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। फरिश्ते भी अल्लाह की मोहताज है, फरिश्ते सब नेक है, पाक में अल्लाह की नाफरमानी इनसे होती नहीं, गुनाहों और खताओं से कोसों दूर है। लेकिन ये भी खूब याद रखो, कोई कितना ज़्यादा नेक हो और बहुत बड़ा बुजुर्ग हो, वली हो, अल्लाह का फरमान बरदार हो, कोई भी हो, हम उनका अदब करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे। इन सब को अल्लाह की इज्जत की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल गर्ल्स टू परफॉर्म सारे जहान से अच्छा।
मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। Of third B. Today I am going to host the program. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. With this beautiful quote, I would like to welcome Malik of First B to verbalize the importance of education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Malik. I am studying in first standard B section. Why is education important? Education gives us knowledge. Education teaches us lessons of humanity. Education compares good thoughts in human being. Education tells men how to think, how to work properly, how to make decisions. Education develops a meaningful outlook. Thank you, Jazakallah khair. Have a nice day. आए हमारे नबी बनकर, जिसके कदमों के तवाफ करते हैं उम्मती बनकर. With this beautiful quote, I would like to welcome Twinkling Stars of LKGA to perform on Khush Amadi. खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन आफरी। खुश आमदी, खुश आमदी, ए तालिबे इल्म व यकीन। खुश आमदी, खुश आमदी, अहलन व सहलन आफरी।
welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. Hooray, hooray, what a happy, happy day. Hooray, hooray, what a jolly, jolly day. Hooray, 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 what a happy, happy day. Hooray, 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 what a jolly, jolly day. You came with lots of love for us, with joy, pleasure and happiness. You came with lots of love for us, with joy, pleasure and happiness. You have come, you have come. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. We say welcome to honorable guest. We say welcome to honorable one. Hooray, hooray, what a happy, happy day. Hooray, hooray, what a jolly, jolly day. Hooray, 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 what a happy, happy day. Hooray, 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 what a jolly, jolly day. What a jolly, jolly day. What a jolly, jolly day. MashaAllah. Let's give a big round of applause to these kids who performed a beautiful. Thank you Harjira ma'am for training them. अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन है. With this beautiful quote, now I would like to invite Sumayya Khanam, daughter of Sadaqat Hazrat, studying in second year, to perform takreer about namaz. Correction, she is going to recite Suratul Fil. Let's hear from her. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Sumayya Khanam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. या कुछ दौलत पर नाज करते हैं, कुछ सूरत पे नाज करते हैं, जिनके हाथों में दमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उम्मती होने पे नाज करते हैं. With this beautiful quote, I would like to welcome little lilies of UKG A section to perform सबसे आला हमारे नबी. सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी. सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला. सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला. हुस्न दहन में अदब लक़ब में धर्म भरम में है सबसे आला. सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला. वही पैगंबर बड़े
इल्म फहम में है सबसे आला, नज़र कदर में पलक झलक में वो हम में तुम में है सबसे आला, है सबसे आला। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। MashaAllah, that was a wonderful performance. Let's give a big round of applause to these kids. You know, it was just 10 days they had for exam. So, MashaAllah, they have done it wonderful job. Lilies for fabulous performance. Thank you, Salma ma'am, for training them. Okay, by the time we have our next group ready. अल्लाह ताला के तारीफ को बयान करने के लिए हम्द लेकर आ रहे हैं मरियम एंड ग्रुप फ्रॉम यूकेजी ए सेक्शन। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mariam Fatima Sheikh. I'm studying UKG section. मेरे हैं दो हाथ, छोटे छोटे हाथ, ये रहते हैं मेरे साथ साथ। मेरे हैं दो हाथ, छोटे छोटे हाथ, ये रहते हैं मेरे साथ साथ। हाँ, और ये दुआ करे इनसे काम जो करे, अच्छा काम हो अच्छा हो अंजाम। मेरे हैं दो पाँव, छोटे छोटे पाँव, ये रहते हैं मेरे साथ साथ। मेरे हैं दो पाँव, छोटे छोटे पाँव, ये चलते हैं मेरे साथ साथ। आओ ये दुआ करे सीधी राह पे चले, नेक राह पे चले हमारे साथ साथ। मेरे हैं दो हाथ, छोटे छोटे हाथ, ये रहता है मेरे साथ साथ। मेरे हैं दो कान, छोटे छोटे कान, ये रहता है मेरे साथ साथ। आओ ये दुआ करे इनसे बात जो सुने, अच्छी बात हो और अच्छा अंजाम। मेरी एक जुबान, छोटी सी जुबान, ये रहती है मेरे साथ साथ। मेरी एक जुबान, छोटी सी ज़बान, ये रहती है मेरे साथ साथ। आओ ये दुआ करे इससे बात जो करे, सच्ची बात और अल्लाह की हो बात। मेरे हैं दो आँखें, प्यारी प्यारी आँखें, ये रहते हैं मेरे साथ साथ। मेरे हैं दो आँखें, प्यारी प्यारी आँखें, ये रहती है मेरे साथ साथ। हाँ, एक दुआ करे उसे चीज़ जो हम देखें और अल्हम्दुलिल्लाह कहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह कहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहे। Thank you. Big round of applause to these cute kids for their cute performance. थैंक यू मरियम एंड ग्रुप। जब तक है इस जान में दम,
ऊंचाई पे लहराता रहेगा अपना देश का परचम। With this beautiful quote, I would like to invite little tots of LKG B section to perform on Nanna Munna Rahi Hoon. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे फाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है ज़माना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। Thank you, Fauzia ma'am, for training them. Now I would like to welcome our beloved manager of Ali Group of Institutions, Muhammad Haris sir, to give voice to annual report. Provide you
high definition HD quality videos. You don't have to take from your mobile. आप मोबाइल में वीडियो पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम बेशक HD क्वालिटी के वीडियोस देंगे फ्री में, वो भी इंशाल्लाह. So सब बैठ जाइए. All of you please sit down. That's me only. So I actually would like to invite our chief guest for today, Sayyid Nayaz Saab. So Nayaz Saab, he is our very supportive counselor and corporator of Tumkur municipality, and he is of great support to our madrasa, school, college and total campus. So whatever permission we need from municipal office, whenever we go to municipality office, our work is made very, very easier by the corporator Nayaz Saab. He is also the president of Health and Sanitation Committee of Tumkur municipality. So I'd like to invite Sayyid Nayaz Saab on stage to share, just to speak for 2 minutes.